While the letter written by Shri Ghulam Nabi Azad is an internal matter of the Congress party, this letter is a vote of no confidence in the top leadership of the Congress party, which no longer functions as a party but has become a parivarik firm, a party which only puts family first. In the days of Mahatma Gandhi, the party used to operate like a parivar. But today, in the days of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, only the parivar has been reduced to the party. And therefore, this letter shows that the Congress party today is not INC, Indian National Congress, but I need Kotri. That's the meaning of INC. It also shows how the Congress party lacks any form of internal democracy, internal elections, internal accountability, and always puts parivar above performance, sycophancy above merit. Mr. Ghulam Nabi Azad has highlighted issues that a series of leaders who have left the Congress party have also highlighted. But unfortunately, the Congress party, whenever it is made to see the reality, always insults, humiliates, and throws out or sidelines those leaders, be it G23, be it Ghulam Nabi Azad ji, be it other senior leaders or younger leaders of the Congress party, when they speak truth to power within the Congress party. On the one hand, Rahul Gandhi says that he is trying to establish democracy across the country. But the Congress party itself has become a democracy-free zone. It has no tolerance for divergent views. Anybody who seeks accountability from the parivar is shown the way out. And the party is run by a Kotri, by a CWC, a committee of Kotri that only functions as the working committee, that only and only allows Darbari's voice to be heard and any other voice is suppressed. This is the reality of the Congress party, and therefore Mr. Ghulam Nabi Azad, when he highlights this in the letter, he is now being called a traitor and is being labelled as somebody who has betrayed the party. But actually, if anybody speaks against the parivar or for reforms in the party, is sidelined and is abused and insulted, just like Narasimha Rao or just like Sitaram Kesari were humiliated. जो त्यागपत्र श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने लिखा है, हालांकि वो आंतरिक मामला है कांग्रेस पार्टी का, परंतु वो त्यागपत्र नहीं, परिवारवाद का समापन सत्र है। इस पत्र में जो बातें उन्होंने उठाई है, बहुत सारे नेताओं ने यही बातें लगातार उठाई है कांग्रेस पार्टी में और बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में ना कोई आंतरिक लोकतंत्र है, ना कोई आंतरिक चुनाव होते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर केवल परिवार को ऊपर रखा जाता है, ना कि परफॉर्मेंस को, और किस प्रकार से केवल साइकोफ्रेंड्स, चाटुकारिता और चमचों की सुनी जाती है, ना कि उन लोगों की जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी में यदि कोई गुलाम से आज़ाद बनना चाहे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये वही पार्टी है जिसमें कि आज आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड कोटरी बन चुका है। और इस कोटरी के चलते किस प्रकार से अनेकों नेताओं को, चाहे वो 50-50 वर्ष बिताने वाले नेता हो पार्टी में या चाहे वो युवा नेता हो, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज पार्टी केवल और केवल 2-3 लोगों के हाथ में है और एक पारिवारिक एंटरप्राइज बन चुकी है। परिवार ही मात्र पार्टी के रूप में आज तब्दील हो चुकी है। ये हकीकत है कांग्रेस पार्टी की। एक तरफ जब इस प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं पार्टी के रिफॉर्म को लेकर, तो ऐसे नेताओं को गद्दार और बाकी गालियों से अपमानित किया जाता है और उन्हें साइडलाइन किया जाता है, चाहे वो G23 हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे वो और भी कोई नेता हो। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई सहिष्णुता भी नहीं है, ना लोकतंत्र है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, परंतु अपनी ही पार्टी को लोकतंत्र फ्री कर चुका है। इसमें कांग्रेस पार्टी को आज भारत जोड़ो के बदले परिवार छोड़ो का अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से परिवार की नाकामी के चलते, परिवार के रिमोट कंट्रोल के चलते, परिवार के इस रवैये के चलते एक के बाद एक सारे कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ये दिखाता है कि किस प्रकार का अविश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार में लोगों का भी है और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी है। 2024 में जो अभी है, इसको लेकर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बड़ी छोड़ा। देखिए, मुझे लगता है कि आगे की भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु
आज जो हकीकत है उसको बयान करने के लिए आज केवल गुलाम नबी आज़ाद जी ने नहीं बल्कि कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने बार बार प्रयत्न किया है। और कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा धूल जब चेहरे पर होती है वो आईना साफ करती है। तो इसीलिए जब तक कांग्रेस पार्टी इतनी गलतियों को नहीं सुधारेगी और भारत जोड़ो के बदले पहले परिवार छोड़ो का अभियान नहीं चलाएगी, परिवारवाद की राह पर चलती रहेगी, केवल और केवल कोटरी सिस्टम और चाटुकारिता करने वाले नेताओं को और दरबारियों को ही तवज्जो देती रहेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का उभर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है तो उन्हें तय करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।